Yeah, the online system was only for those who stay far away. So let's begin now. We have already wasted our precious time, and unfortunately, I have to wind up by 7 today. So we will have half an hour loss of the class today. That will be duly compensated in future because I have a meeting at 7:30. Hence, I'll have to leave a little early today. So section 57, we look from our own Bayer Act. Has been arrested without warrant. The first thing that is contemplated by section 57, that a person has been arrested without warrant. A police officer cannot detain such person in custody for a period longer than what is reasonable. So the first condition is that the custody should be for a period of X hours less than 24, which should be reasonable. Means it is an expectation from the police officer to complete. इतने बच्चे देखिए ज्वाइन कर लिए Yeah. क्लास. ये कैसे क्या ऐप बना रखे हैं क्या? ऑनलाइन भी आते हैं ऑफलाइन दोनों आते हैं ना. अच्छा. ज्यादातर ऑनलाइन. Right. So usually the expectation is that investigation should be completed as quickly as possible. Right. X hours less than 24 hours. Maximum 24 hours has been given. Right. So that is also a legitimate expectation of the lawmakers that investigation should be completed within 24 hours. And if not within 24 hours, then only the magistrate can extend the period of custody. So the maximum custody that a police officer enjoys on his own, in his own capacity, is 24. And the expectation is that he should complete it. The expectation is that he should complete it in hours less than 24 rather. So reasonable time, right? In any case, the period of detention, you can see on the screen, in any case, the period of detention cannot be longer than 24 hours, exclusive of the time taken for the journey. Right, so journey takes few hours, reasonable time taken for the journey. Right, it should not be used as a facade. बहाने के तौर पे ना इस्तेमाल किया जाए कि आने जाने में टाइम लग गया, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लग गया. राइट, वहां पे एक रीजनेबल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन होती है. रीजनेबल टाइम के विदिन तो जर्नी का टाइम माइनस किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि बिगिनिंग ऑफ कस्टडी कब से शुरू हुई और 24 आवर्स की कंप्लीशन हो गई या नहीं हो गई. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. This is the third point. Fourth point is the period of detention can be longer than 24 hours. आप माइक बंद कीजिए प्लीज, क्योंकि ना माइक से दिक्कत आ रही है. Right. The period of detention can be longer than 24 hours when a special order has been given by a magistrate under section 167. So you see here, the police in his own capacity can detain a person only up to a maximum of 24 hours, not longer than that. Right. And if the police officer wants for proper investigation that the period of custody should be longer, then he must produce the accused person or the arrested person before the magistrate, who shall have the power. क्या कर रहे हो? बंद कर दो ना उसको, कोई दिक्कत. Who shall have the power to extend the period of custody. Right. So we will see what power the magistrate enjoys. Next point is, let's explore the relevant portion of section 167 at this point. So let's see what section 167 has to say. 167 का जो relevant portion है बस वो देखेंगे. This is not the time when we will see the whole of section 167. But there is no harm if we see the Bayer Act once. Right, Bayer Act एक बार पूरा पढ़ लेने में क्या जाता है. Law में वैसे भी repetition is important. The more you go back to the sections, the more you grasp. Right. So ये जो हमारा point है, this takes us to section 167. Point क्या है?
कि जब मैजिस्ट्रेट ने एक विशेष आदेश द्वारा कस्टडी की पीरियड बढ़ाई तभी वो मोर देन 24 आवर्स की हो सकती है, जिसमें कि पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशियल कस्टडी, वहां पर भी द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट इज रेस्ट्रिक्टेड। ऐसा भी नहीं कि मैजिस्ट्रेट कैन इंक्रीज द पीरियड ऑफ डिटेंशन at his whims and fancies and can be unreasonably a long period. No, even the magistrate has to act within restrictions, within stipulations. So those stipulations are there in section 167. So let's see what our Bail Act has to say first. Right, interlink वाले जितने भी sections हो Bail Act से पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पर मैंने section 167 को अपनी तरह से भी प्रेजेंट किया है ऑन द स्क्रीन, वी विल सी दैट लेटर। पहले लेट्स सी 167 फ्रॉम द बेयर एक्ट। तो हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं? 167 हम सिर्फ इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि 24 घंटे के बाद पीरियड ऑफ कस्टडी कैसे बढ़ सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है। सो 167 सबसेक्शन 1, whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station making the investigation not below the rank of sub-inspector shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary, so case diary, and shall at the same time forward the accused to the magistrate. Right? तो पहली चीज हमने देखी, person has been arrested and detained in custody. Right? Custody में है वो, और पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है, या वो मुंह नहीं खोल रहा, he is not cooperating perhaps, या वार्म अप में थोड़ा टाइम लगेगा उसको, अभी उसके बाद शायद खुले। तो it appears that the investigation cannot be completed within the 24-hour period. थर्ड चीज जो हम देख रहे हैं कि reasonable grounds हैं for believing that the accusation or information is well founded. ये शर्त है। It should not be mere surmise, it should not be mere conjecture, it should not be mere presumption, right? It should not be what is apparent to the police officer. No, not at all. He must have some solid grounds, right, to reasonably think that the information, that is the FIR or the information of cognizable offense, is credible, is believable, and is well founded. Well founded means it is based on some material facts available on the register or available in the complaint, whatever has come to the police officer. So some material facts should be there. So there must be material facts. Well founded is not a casual expression. It is to be interpreted strictly, right? So it's not a casual expression. It says that it must be founded on something. It should have a reasonable basis. Some material grounds should be there. So it should not be mere complaint. It should not be only an information, that's it. It should be along with some material facts, like some documentary evidences are also supplied along with it. Some preliminary investigation was done, and then some solid evidences are there to suggest the involvement of the accused person or the veracity of the incident, कि हाँ भी ये घटना सच में हुई होगी। तो वेल फाउंडेड बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तब वो कन्विंस करेगा मैजिस्ट्रेट को, और वो भी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर या उससे हायर रैंक का होना चाहिए। ट्रांसमिट द केस डायरी, जो केस की डायरी है वो ट्रांसमिट कर दे नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, और फॉरवर्ड भी कर दे अक्यूज्ड को। जो कस्टडी में अक्यूज्ड है should be forwarded to the magistrate, means should be presented before the magistrate. Subsection 2 पर आते हैं। The magistrate
to whom an accused person is forwarded may, so may is discretion, whether he has or has not jurisdiction to try the case. तो दो situations हैं यहाँ पर. The nearest magistrate has the jurisdiction to try and commit the case. दूसरा situation, the nearest magistrate does not have the jurisdiction to try and commit. Right? तो पहले situation में देखते हैं कि he has jurisdiction, authorize the detention of the accused from time to time. From time to time. Expectation है मैजिस्ट्रेट के सीधे 15 दिन की कस्टडी या 14 दिन की कस्टडी ना दे, एकदम एट अ टाइम. मैक्सिमम 15 डेज हो सकता है. राइट, इट कैन बी मैक्सिमम 15 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी. और उसके बाद तो खैर पुलिस कस्टडी कैन नॉट फॉलो. उसके बाद तो फिर जुडिशियल कस्टडी होगी. अब जुडिशियल कस्टडी एडिशनल 45 डेज की हो या 75 डेज की, वो देखना पड़ेगा नेचर ऑफ एक्यूजेशन पर, क्योंकि कुछ केसेस में मैक्सिमम पीरियड ऑफ कस्टडी पीसी प्लस जेसी मिलाकर 60 और कुछ केसेस में पीसी प्लस जेसी मिलाकर 90. राइट, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें 90. तो ये पीरियड देखना पड़ेगा. तो ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है. तो यहाँ पर ये भी है कि सीधे मैजिस्ट्रेट ये कह दे कि जाओ तुम्हें 14 दिन का रिमांड दिया और प्लस उसके बाद 45 डेज और का जैसे एक ही बार सुना देना, ऐसा नहीं हो सकता. फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट मीन्स द टोटल पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी ग्रांटेड एट वंस. राइट, इवन दो द मैजिस्ट्रेट हैज डिस्क्रेशन टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ कस्टडी बट नॉट एट वंस. राइट, हाँ, पुलिस कस्टडी पूरे 14 दिन की दे देता है, लेकिन ये कह दे कि चलो पीसी भी दे दिया 14 दिनों का और उसके बाद 45 डेज और, ऐसे एक बार में नहीं सुना सकता ऑर्डर. और एक और बात कह दूं आपको, हालांकि उसके पास डिस्क्रेशन है कि पूरे और 14 दिन की रिमांड दे सकता है पुलिस कस्टडी, लेकिन देना चाहिए नहीं, क्योंकि लॉ मेकर की एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम टाइम टू टाइम. राइट, हाँ, मैजिस्ट्रेट को चूंकि मे लिख दिया है, मे, तो इसलिए जरूरी नहीं कि वो पुलिस कस्टडी को भी तोड़ तोड़ कर ग्रांट करे. पूरे बाकी बचे हुए दिनों के लिए ग्रांट कर सकता है, लेकिन करना चाहिए नहीं. व्हाई? बिकॉज इफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंप्लीटेड इन फर्दर 3 days, in further 4 days, then why to keep him waiting for additional 10 days? Right? How can a police officer give a time frame to the magistrate ki sir, we need at least 10 days to investigate? Why can't the investigation be done within 3 days? So we cannot give a relaxation to the police officer also, right? It must be noted here that we have to take care of the right to personal liberty also, right? He is just an accused person. He is just an arrested person. He is not a convicted person. Conviction abhi hui nahi hai. तो इसलिए एक प्रेशर भी क्रिएट करना है पुलिस वालों पे, एकदम रिलैक्स ना हो जाए. राइट, हाँ, कुछ केसेस में वेयर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस अलोंग विद अदर मटेरियल फैक्ट्स, राइट, जज को कन्विंस कर सकती हैं कि सीधे 14 दिन का रिमांड दिया जाए. बिल्कुल हो सकता है ऐसा. हो सकता है जज पहले से ये सोचकर बैठ जाए कि ये बहुत बड़े स्केल का कोई ऑफेंस है. राइट, कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कोई बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है जिस पर कि एम कोका लगता हो. ऐसी सूरत में फिर हो सकता है कि वो पहले से डिसाइड कर ले कि हम इसे लंबी पीरियड कस्टडी का हम देंगे, क्योंकि जल्दी तो पता नहीं चलेगा. आप किसी भी अरेस्टेड पर्सन को दिन रात जगाकर तो क्वेश्चनिंग कर नहीं पाओगे. राइट, सोने का टाइम आपको छोड़ना पड़ेगा, ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाएगी नहीं तो इसलिए वहां पर जब बड़ी इंट्रीग हो, बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो, तो फिर वक्त लग जाता है. तो ये मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रेशन के ऊपर है. राइट, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days इन द होल. सो नॉट मोर देन 15 days इन द होल मतलब पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी मोर देन 15 days. सो 15 दिनों से ज्यादा की पुलिस कस्टडी तो हो ही नहीं सकती. राइट, टोटल मिलाकर
तो टोटल मिलाकर इसका मतलब कि जो पहले का 24 आवर्स है उसको इसमें इंक्लूड करें या वो एडिशनल रहेगा? The first 24 hours spent in police custody should be included because the expression is whole. Whole word लिखा ही इसलिए, right? तो यहाँ पर दो सिचुएशंस मैंने बताई थी कि मैजिस्ट्रेट हैज ज्यूरिसडिक्शन, मैजिस्ट्रेट डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। तो अब मान लो कि अभी तक तो हमने किया मैजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, तो एज अ होल 15 डेज की पुलिस कस्टडी वो ग्रांट कर सकता है, यानी कि 14 डेज मोर। इफ ही डजंट हैव ज्यूरिसडिक्शन देन, तब उस सूरत में वो क्या करेगा कि अगर दो बातें हैं यहाँ पर, अगर उसे लगता है कि फर्दर डिटेंशन जरूरी है, आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो अ मैजिस्ट्रेट, even if he does not have the territorial jurisdiction, in his own territory he has the same rank and powers as the other magistrate, equivalent one sitting in the other state. So ठीक है, उसके पास अभी jurisdiction नहीं है, लेकिन अब उसे लगता है कि फर्दर डिटेंशन जरूरी है, तब तो जो ऊपर है लिखा हुआ वो होगा, फर्दर डिटेंशन होगी। और उसे लगता है कि फर्दर डिटेंशन इज नॉट नेसेसरी, suppose from the material facts placed before him he feels that further detention is not required, मतलब उसे कस्टडी एक्सटेंड करने का मन नहीं है, he does not want to increase the period of custody, तो भी क्या करेगा वो? he may order the accused to be forwarded to a magistrate having jurisdiction, right? तो यहां पर भी में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि he has the discretion here, right? he has the discretion, या तो वो पुलिस की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज भी कर सकता है कि नहीं मैं कस्टडी ग्रांट नहीं करूंगा, लेकिन ना यूजुअली होता कुछ यूं है कि वो सोचता है कि लेट द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन डिसाइड, दो पर्सनली आई फील दैट फर्दर डिटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, but better the decision be taken by the magistrate having jurisdiction. So what will he do? He will order a remand for the purpose of transit, right? ये कैसा remand होगा? This remand will be for the purpose of transit. To whom? To the magistrate having jurisdiction, right? तो आपने देखा यहाँ पर जिस मैजिस्ट्रेट का jurisdiction है उसके पास क्या पावर्स हैं, और जिस मैजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन नहीं है उसके पास क्या पावर्स है, राइट? उसके पास एक एडिशनल पावर आ जाता है टू ऑर्डर रिमांड इन ट्रांजिट टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन, एंड दैट ही गिव्स व्हेन ही फील्स दैट फर्दर डिटेंशन इज नॉट नेसेसरी, राइट? सो ही मेक्स एन ओपिनियन इन फेवर ऑफ लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल अरेस्टेड, उसका ओपिनियन ऐसा है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि मेरी जो ओपिनियन है वो इस केस को अफेक्ट करे, तो एक तरह से समझो कि अपनी बला टालता है, दिल से उसे लग रहा है कि इट्स नॉट नेसेसरी, उसे नहीं लग रहे मटेरियल ग्राउंड्स हैं इतने कि इसकी फर्दर डिटेंशन बोली जाए, तो कोई बात नहीं, वो ये सोचता है कि भाई जिस मैजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन है उसी पे छोड़ देते हैं, वो क्या डिसाइड करता है, राइट? तो दिस इज नथिंग बट जुडिशियल डिसेंसी, राइट? may है तो discretionary power. Now let us come to section 167 subsection 3. Sorry, पहले proviso पढ़ लेते हैं. Proviso that the magistrate may authorize the detention of the accused persons otherwise than in the custody of the police beyond the period of 15 days if he is satisfied and adequate grounds exist for doing so. तो एक चीज देखना यहाँ पर, otherwise than in custody of police, right? मतलब अब 15 दिनों के बाद, after 15 days, अब कोई कस्टडी होगी तो सिर्फ एक ही हो सकती है, वो otherwise than पुलिस कस्टडी, मतलब पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती है. So proviso A very clearly establishes that the further detention cannot be in police custody, means further than 15 days cannot be police custody. It has to be otherwise than in custody of the police, which obviously means judicial custody. तो यहाँ पर satisfied word आप देख सकते हैं, if he is satisfied.
अच्छा, सेटिस्फाइड के साथ एंड लगाकर लिखा है एडिक्वेट ग्राउंड्स। तो गौर करने की बात है कि अब जो कंडीशंस हैं और स्ट्रिंजेंट हो चुके हैं। नाउ इट नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट ग्राउंड्स। भाई अब तक 15 दिनों की पुलिस कस्टडी में पुलिस के पास कुछ तो और एडिशनल रिजल्ट्स आए होंगे। 15 दिनों में क्या पुलिस ने कुछ नहीं किया होगा? तो इन 15 दिनों में और भी चीजें पुलिस के सामने आ गई होंगी जो मैजिस्ट्रेट के सामने रखेगा। एंड द मैजिस्ट्रेट हैज टू एग्जामिन एडिक्वेसी ऑफ दोस ग्राउंड्स। एडिक्वेसी टेस्ट किया जाएगा। एंड दिस सेटिस्फैक्शन, राइट, does not only signify subjective satisfaction, it has to be an objective satisfaction also, that any reasonable magistrate in his place would also infer the same, right? इनकी जगह कोई भी दूसरा रीजनेबल मैजिस्ट्रेट होता तो वो भी यही इन्फरेंसेस ड्रॉ करता। तब जाकर हम कहेंगे देयर इज एडिक्वेसी ऑफ ग्राउंड्स, सफिशिएंसी ऑफ ग्राउंड्स। आप देख रहे हैं कंडीशन पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए जुडिशियल कस्टडी कैन नॉट बी डन रूटीन मैनर कि अच्छा पीसी नहीं दे सकते, चलो जेसी दे दिया। जेसी भी क्यों? व्हाई कॉम्प्रोमाइज द फ्रीडम, द इंडिविजुअल लिबर्टी, वेयर इन्वेस्टिगेटर्स डोंट रिक्वायर द सेम। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए सुपरफ्लुइटी नहीं होनी चाहिए ना, राइट? कि भाई हमें चाहिए कस्टडी, किस लिए? द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट एक्सप्लेन क्यों चाहिए कस्टडी। और अब क्या बच गया बताओ, राइट? गिव मी द डायरी। जज डायरी मांगेगा, बताओ कहां तक पहुंचे तुम, क्या वो ग्राउंड्स एडिक्वेट है कि अब मैं और जेसी दूं, राइट? तो एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, बट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग। दो सिचुएशंस है यहां पर। पहला सिचुएशन है इफ द ऑफेंस is punishable with death, life imprisonment or imprisonment for a term of not less than 10 years। मतलब 10 years और more, उसमें लाइफ भी आ जाता है और डेथ सेंटेंस भी आ जाता है। अगर ऐसा है so total period PC plus JC should be 90, not more than that। और in all other offenses it can be 60 days। PC plus JC is equal to 60 days। And on the expiry of the said period of 90 days or 60 days, whichever may be the case, the accused person shall be released on bail। Shall be released on bail। So shall be released on bail is a mandate। That is why this is called the concept of statutory bail। यहाँ पर section 167 is known for the concept of statutory bail। यहाँ पर the statute itself gives the right to the accused to get bail, right, irrespective of the fact that the offense is bailable or non-bailable। Doesn't matter at all। The offense may be bailable, the offense may not be bailable, yet this is statutory right of the accused person to get bail if these conditions are satisfied। तो यहां पर आप गौर करेंगे कि एक प्रेशर है स्टेट पर, एक प्रेशर है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर। वो प्रेशर ये है कि उसे विद इन 90 डेज इन सम केसेस एंड विद इन 60 डेज इन सम केसेस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेनी है। इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड एट ऑल कॉस्ट। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो पुलिस रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 173, जो चालान है, जो चार्जशीट है, वो फाइल कर देनी है, राइट? अगर वो फाइल नहीं किया तो स्टैट्यूट ही बेल दे देगा उस एक्यूज्ड पर्सन को। तो दिस इज अ प्रेशर क्रिएटेड ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसमें आप गौर करेंगे कि अगर 90 डेज एक्सपायर कर जाते हैं और एक्सपायर करते ही जो अरेस्टेड पर्सन है उसने बेल एप्लीकेशन लगा दी अंडर सेक्शन 167 प्रोवाइजो ए, राइट, तो फिर चार्जशीट बेशक उसके 1 घंटे बाद ही क्यों ना फाइल हो जाए,
चार्जशीट 1 घंटे भी बाद क्यों ना फाइल हो जाए, ठीक है, स्टैट्यूटरी बेल मिलके रहेगा। तो यही रेस होता है, देयर इज अ रेस बिटवीन द पुलिस ऑफिसर and the arrested person. That is why you will notice that generally when a case seems to be complicated or a large scale investigation is to be done, तो वहां पर पुलिस वाले एक चार्जशीट आपाधापी में जल्दीबाजी में फाइल कर देते हैं, only to deprive the arrested person of his right to statutory bail, कि वो उससे वंचित हो जाए। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फिर बाद में फाइल करते हैं। वो इस बात का फायदा उठा लेते हैं, सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 में चार्जशीट फाइल होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का स्कोप है, राइट। इट कैन बी डन सुओ मोटो बाय द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर खुद भी वो कर सकता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और द मैजिस्ट्रेट में स्पेशली डायरेक्ट हिम टू डू सो, राइट। डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि तुम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। तो वो इस बात का फायदा उठाते हुए एक चार्जशीट फाइल कर देता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी जुडिशरी ने उनकी इस चालाकी को समझी, एंड देयर इज अ टफ कंटेस्ट हियर कि जब चार्जशीट फाइल होती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाले सप्लीमेंट्री चार्जशीट बनाने की सोच रहे होते हैं, उस वक्त उस चार्जशीट को देखा जाएगा। और अगर ऐसा लगा कि द चार्जशीट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन वेग सब्सटेंसेस, बहुत एम्बिग्विटीज हैं, which clearly show that the police has miserably failed in conducting proper investigation, even though so many days were given to the police department, right। और एकदम देखकर लग रहा है कि चार्जशीट को आपाधापी में फाइल कर दिया है। इट वॉज फाइल्ड हरीडली विदाउट गिविंग मच थॉट, रादर चार्जशीट में एफआईआर ही पूरी रिप्रोड्यूस कर डाली एक बार को, और 10-12 सेक्शंस ऐसे ही डाल दिए इन्वेस्टिगेशन में, राइट। कुछ एडिक्वेट मिला ही नहीं, ना कोई डिस्कवरी ना कुछ, बस ऐसे ही एफआईआर ही रिप्रोड्यूस करके नाम दे दिया चार्जशीट का। और कॉलम 11 जिसमें कि अक्यूज्ड पर्संस का नाम धरा जाता है 2 के भर दिए, बाकी 3 को 12 में रख दिया। कॉलम 12 मतलब सस्पेक्ट, और कोर्ट से इजाजत मांगी कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की इजाजत दो। अब यहां पर 2 बातें हो सकती हैं। अगर तो मैजिस्ट्रेट ने देख लिया, सी थ्रू करना इसे बोलते हैं, ये जो चालाकी है, राइट। ये मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, देखिए प्रैक्टिकली मैजिस्ट्रेट सी थ्रू कभी नहीं कर पाता है, बेचारे के पास टाइम ही नहीं, राइट। और कर भी पाता है तो रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट ने सी थ्रू कर लिया कि दिस चार्जशीट is filed on flimsy basis, right, एकदम आपाधापी में एफआईआर कोई रिप्रोड्यूस, जज देख रहा है एफआईआर ये रही, चार्जशीट ये रही, एकदम सेम टू सेम सब कुछ, उसी में 2-4 पैराग्राफ और ऐड कर दिया, ठीक है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई प्रॉपर, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए फाइल की गई है, मेलाफाइडी इंटेंशन नजर आ जाएगा मैजिस्ट्रेट को कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए फाइल की गई है कि ताकि अरेस्टेड पर्सन को 167 सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो के ए से जो राइट मिली हुई है उसे एक्सक्लूड किया जा सके, उसे अपवर्गित किया जा सके, उसे डिप्राइव किया जा सके। तो मैजिस्ट्रेट कॉग्नाइजेंस लेने से मना कर सकता है। मैजिस्ट्रेट में रिफ्यूज टू टेक कॉग्नाइजेंस। अब एक सवाल उठता है where the charge sheet has been filed, but the magistrate has adamantly refused to take cognizance of the same, then should we take it as a filed charge sheet? अगर हाँ, तब तो बेचारा अरेस्टेड पर्सन को बेल नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 167, स्टैट्यूटरी बेल उसे नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 167।
राइट। वैसे तो बेल की प्रोविजंस हैं आगे 437, 438। यहां पर हम स्टैट्यूटरी बेल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो स्टैट्यूट खुद ही बेल हमें देने को राजी है इन शर्तों के ना पूरे होने पर। तो यहां पर दो व्यूज हैं। एक व्यू ये है कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्नाइजेंस लेने से अगर मना कर दिया तो माना जाएगा कि चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई। जाहिर सी बात है, हम पुलिस हो या कोई भी उसे इस बात का नाजायज फायदा कैसे उठाने दें। व्हाट ही कैनॉट डू डायरेक्टली, ही कैनॉट डू इनडायरेक्टली ऑल्सो। इनडायरेक्टली वो यहां क्या करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज अ कलरेबल चार्जशीट, ये छलिया चार्जशीट है। वो अप्रत्यक्ष रूप से वो करना चाह रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से 167 में वो नहीं कर सकता था, बल्कि पुलिस वाला अपने मेलाफाइडी इंटेंशन से लॉ में लिखे उपबंध को नलीफाई कर रहा है, जो पावर सिर्फ लेजिस्लेचर को है। इज ही नॉट अज्यूमिंग द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर बाय मेकिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 167 void, unenforceable? Right? Can he take undue advantage of his own wrong? No, he cannot. तो यहां पर मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी, मैजिस्ट्रेट पोस्टमैन नहीं आया, चार्जशीट लग गई ठप्पा। नो, ही इज नॉट अ पोस्टमैन। यहां पर ही मस्ट अप्लाई हिज माइंड, राइट। तो हाई कोर्ट्स ने भी ये होल्ड किया है कि वेयर इट इज apparent, obvious that the charge sheet has been filed with the mala fide intention of interfering with the enforcement of section 167 subsection 2 proviso A, then such charge sheet will not be taken cognizance of and the arrested person shall have the right to statutory bail, right? एक ये important observation है, right? So you must keep this in mind. दूसरी बात कि जरा सी भी देर अगर हो गई, अब डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन कितनी जल्दी फाइल हुई। डिफेंस काउंसिल ने 90 दिन पूरे हुए नहीं कि प्रातः काल सूर्योदय के ठीक बाद पहुंच गया कोर्ट के सामने कि गेट खुले, हम दौड़ पड़े। ये रेस है, मैंने आपको पहले भी कहा, राइट। पुलिस वाले उसके 1 मिनट भी बाद आके अगर फाइल करते हैं चार्जशीट, तो अब स्टैट्यूटरी बेल का राइट बिल्कुल एनफोर्स होगा। यहां पर पुलिस वाले इस रेस को हार गए, राइट। लेकिन हाँ, अगर पुलिस वाले पहले आ गए, 90 दिन बीत चुके, पुलिस वाले आए 91st डे पर, 92nd डे पर, लेकिन अरेस्टेड पर्सन के डिफेंस काउंसिल या अरेस्टेड पर्सन खुद बेचारा नहीं अप्रोच कर पाया टाइम पर, 1 घंटे का भी फर्क आया चार्जशीट पहले और एप्लीकेशन बाद में, then the application will be disallowed, right? 1 घंटे का भी फर्क पड़ गया, then the application will be disallowed. अब वहां पर वो ये नहीं कह सकता है कि मेरा राइट टू स्टैट्यूटरी बेल है। क्यों? क्योंकि वहां पे कहा जाएगा था, वहां पे कहा जाएगा था, है नहीं था। उसकी एक पीरियड थी चार्जशीट फाइल होने से पहले पहले तक, उसका तुमने फायदा नहीं उठाया। तो देखो, कानून भी उसी का साथ देती है जो विजिलेंट होता है। ये सब बातें कही गई, हालांकि अभी तक ये कंट्रोवर्सी ही है कि जो मेरा राइट था, जो मुझमें वेस्टेड था, अब वो मेरा राइट जो है डाइवेस्ट क्यों हो जाएगा। लेकिन इसका एक जवाब है। यहाँ पर बात हर जगह फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट लाने की नहीं। जवाब ये है कि नाउ द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, so the day-to-day presence of the accused person will be necessary. Why? Because now there will be argument over framing of charge, number one, and once the charges are framed, the trial is expected to be on a day-to-day basis. तो day-to-day basis पर accused person का रहना जरूरी है, क्योंकि prosecution evidence में अगर accused के absence में करा लिया तो फिर fair trial का right, जो ज्यादा बड़ा right है, वो नहीं हो पाएगा, right? तो अगर पहले हो गया होता तो ठीक था, लेकिन अब वो राइट आपका डाइवेस्ट हो चुका। तो यहाँ पर एक नई बात हमने देखी कि सेक्शन 167 का कुछ अंश सब्सटैंटिव लॉ है, बाकी जो प्रोसीड्यूरल है, ये अकेला सेक्शन
आंशिक रूप से पार्टली सब्सटैंटिव है और पार्टली प्रोसीड्यूरल है, और ये एक ऐसा राइट क्रिएट करता है, राइट, जो वेस्ट होती है एक टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड के एक्सपायरेशन के बाद, राइट, और कुछ सिचुएशन जो अराइज होगी जैसे चार्जशीट फाइल हो गया उसके बाद डाइवेस्ट भी हो जाती है, राइट। तो इसलिए कौन जल्दी आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, राइट। अब हम आते हैं बी पे, प्रोवाइजो बी, नो मैजिस्ट्रेट shall authorize detention of the accused in custody of the police under this section unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time, right. So accused must be produced. Now this produced can be interpreted as physically produced or virtually produced, but must be produced. याद रखिएगा, पुलिस कस्टडी जो एक्सटेंड होगी ना फ्रॉम टाइम टू टाइम, 3 दिन बढ़ाई, फिर 4 दिन बढ़ा दी, फिर 2 दिन बढ़ा दी, तो जब जब पुलिस वाले पुलिस कस्टडी बढ़वाने आए तब तब मैजिस्ट्रेट इंसिस्ट करे कि एक्यूज्ड को भी पेश करो, राइट। एक्यूज्ड को पेश करना, एक्यूज्ड की रहनुमाई इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर ऑर्डर्स में देखे होंगे रहनुमाई लिखा हुआ होता है, इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि मैजिस्ट्रेट एक बार तसल्ली भी तो एक्यूज से बात करके करेगा कि पुलिस कस्टडी में कुछ हो तो नहीं रहा, राइट। ही हैज टू सेफगार्ड द बॉडी एंड लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन आल्सो, द अरेस्टेड पर्सन आल्सो, राइट। तो हर बार मैजिस्ट्रेट विल इंसिस्ट कि उसको फिजिकली प्रोड्यूस किया जाए या आजकल वर्चुअली प्रोड्यूस किया जाए, राइट। लेकिन जुडिशियल कस्टडी बढ़ाने के लिए कंपल्सरी नहीं, right. So the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage. तो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज से तो सारे ही काम हो जाते हैं ना, तो चाहे वो पुलिस कस्टडी का हो या वो जुडिशियल कस्टडी का हो। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में कभी कभी एक्यूज की एब्सेंस में भी ये हो सकता है, कंसिडरिंग दैट एक्यूज्ड इज सेफ, क्योंकि वहां पर एक थर्ड पार्टी होती है, द जेल अथॉरिटीज, राइट। लेट मी टेल यू कि दैट 167 जो हम पढ़ रहे हैं कस्टडी का पीरियड, ये इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फेसिंग द ट्रायल। ट्रायल के दौरान जो कस्टडी होती है वो फिर अलग कस्टडी है, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 167। ट्रायल के दौरान जो कस्टडी होती है वो तो ये इंश्योर करने के लिए है कि एक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंट होता रहे ट्रायल के दौरान, राइट। तो उसकी पेशी इंपॉर्टेंट है पूरे ट्रायल में, तो इसलिए कम से कम 313 तक तो वो जरूरी है, क्योंकि 313 में एक्यूज का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैजिस्ट्रेट खुद एग्जामिन करता है एक्यूज को प्रोसिक्यूशन एविडेंस की समाप्ति के बाद, वंस द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज ओवर, तो उसकी प्रेजेंस जरूरी है, इसलिए हम उसको रखते हैं फिर जिस कस्टडी में वो जेल की कस्टडी, राइट। वो कोर्ट की कस्टडी है, वो जेल की कस्टडी है, लेकिन वो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी जो 167 में आप पढ़ रहे हो वो नहीं, राइट। उसका मकसद कुछ और है, इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद है कस्टोडियल इंटेरोगेशन, कस्टडी में रखकर, हिरासत में रखकर पूछताछ, राइट। नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास shall authorize detention in the custody of the police. सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट के पास तो पावर ही नहीं है पुलिस कस्टडी की। इंपॉर्टेंट सूचना पीटी के लिए, हाँ, इफ द स्टेट गवर्नमेंट, सीआरपीसी ने तो नहीं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट करे सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी ने उतनी एकोमोडेशन छोड़ दी, उतना स्पेस छोड़ दिया है कि आप कर सकते हैं ऐसा, राइट। स्टेट गवर्नमेंट अगर अमेंडमेंट करे और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी ये पावर दे दे तो ठीक है, चलेगा। Explanation 1. For avoidance of doubts, it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in paragraph A, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail.
भाई स्टैट्यूटरी बेल में बेल तो मिलेगा, लेकिन फिर बेल बॉन्ड भरिए, श्योरिटी लाइए, ताकि श्योरिटी के माध्यम से आपकी कोर्ट कस्टडी बनी रहे। तो आप अगर बेल फर्निश नहीं कर पाएंगे तो फिर तो स्टैट्यूटरी बेल होने के बावजूद भी बंद रहेंगे, डिटेंशन में रहेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, मान लो कि स्टैट्यूटरी बेल मिल गई, राइट, लेकिन बेल न फर्निश करने की वजह से कुछ दिन और रहना पड़ा, लेकिन जिस दिन भी मैं बेल फर्निश कर दूंगा, चाहे ट्रायल शुरू हो चुका हो, जिस दिन भी मैं बेल फर्निश कर दूंगा, आई मस्ट बी फोर्थराइटली रिलीज्ड, तुरंत मुझे रिलीज कर दिया जाएगा। तो मतलब यूं समझ ले कि बेल मिली हुई है, हम ही बेल फर्निश ना कर पाने की वजह से अभी है। हाँ, अब उसी दौरान अगर मान लो चेंज सर्कमस्टांसेस की वजह से, जैसे कि कुछ और कंप्लेंट्स आ गए वगैरह वगैरह, कोर्ट के ऑर्डर से अगर मुझे जेल की कस्टडी मिल गई तो फिर तो बात ही अलग है, राइट। वो तो बाहर निकलने के बाद भी हो सकती थी। मैं बेल पे होता तब भी मैजिस्ट्रेट चाहता तो मुझे फिर से अरेस्ट करवाकर बुला सकता था, राइट, फॉर फेसिंग द ट्रायल। डिपेंड करता कि मैं बेल की कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। If any question arises whether an accused person was produced before the magistrate as required under clause B, the production of the accused person may be proved by his signature on the order authorizing detention। तो ये तो बड़ा क्लेरिकल सा प्रोविजन है कि भाई ये तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना कि अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट, तो हाजिरी कैसे बनेगी? सिग्नेचर से। ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं। Provided further that in case of woman under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of a remand home or recognized social institution। तो या तो रिमांड होम में या सोशल इंस्टीट्यूशन, कोई एनजीओ। ये भी हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। 2A देख लेते हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 2, the officer in charge of the police station or the IO, if he is not below the rank of sub inspector, तो सब इंस्पेक्टर तो कम से कम होना चाहिए। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, याद होगा नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। अब संजोग से नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जिसके पास ले जा सकते हैं वो जेएम नहीं है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है, अवेलेबल नहीं है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिससे होना चाहिए। तो फिर जब नहीं है कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ना जुरिसडिक्शन वाला ना बिना जुरिसडिक्शन के, सबके सब एक ही साथ हो सकता है, शादी पे चले गए, जो भी है, ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट on whom the powers of JM or MM have been conferred। तो अगर तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी कुछ पावर्स जेएम के दिए हुए हैं, तो उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ढूंढना है। जैसे डीएम के पास, जनरली हर जगह के डीएम के पास एक्सेप्ट महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, या शायद कुछ और भी स्टेट्स होंगे, शायद 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डीएम और कलेक्टर अलग कर दिए गए, राइट। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वही डीएम है, और उसके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं, और जेएम वाले हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाले। तभी वो पैसे की रिकवरी सारी डीएम ही करवाता है, कोर्ट के ऑर्डर के भी पैसे की रिकवरी वो करवाता है। तो अगर तो उसके पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाले पावर हैं, वो एडीएम हो सकता है, वो डीएम हो सकता है, वो एसडीएम हो सकता है, राइट। तो उसके पास भी लेके जाया जा सकता है। डायरी की कॉपी लेकर, जो डायरी है अपने साथ ले जाएं पुलिस वाले, राइट, और उसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें। Thereupon such executive magistrate may, for reasons to be recorded in writing, तो writing में reasons देगा, authorize detention of the accused person in such custody for a term not exceeding 7 days in the aggregate। यहां पर होल की जगह एग्रीगेट कर दिया, बात वही है, राइट। तो टोटल 7 डेज। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसके पास जेएम वाले पावर्स हैं, स्टेट ने दिए हुए हैं,
उसके सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन ये 7 दिनों तक ही, राइट। तो इससे ज्यादा ये पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता है, राइट। Authorized detention of the accused person in such custody मतलब पुलिस कस्टडी, as he may think fit for a term not exceeding 7 days in the aggregate, and on the expiry of the period of detention so authorized, the accused person shall be released on bail, except where an order for further detention for the accused person has been made by, आ गया है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शादी से वापस, ठीक है। तो अब वो जो सोचे, जो उसको ठीक लगे, उसके सामने भी डायरी की कॉपी तुरंत दे दी जाएगी, उसे दे ही दी गई होगी, वो तो था नहीं, बस उसके ऑफिस तो पहुंची गई होगी, जब वो आया तो उसने देखा, राइट। तो अगर उसने बढ़ा दिया है डिटेंशन का पीरियड तब तो ठीक है, नहीं तो 7 डेज के बाद उसे बेल दे दी जानी चाहिए, राइट। और शैल बी रिलीज ऑन बेल लिखा हुआ है, मतलब इट इज एन ऑब्लिगेटरी प्रोविजन, imperative provision, obligatory provision, right? And where an order for such further detention is made, the period during which the accused person was detained in custody under the orders made by the magistrate, executive magistrate, shall be taken into, obviously common sense की बात है। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो वापस आ गया, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है या जो कॉम्पिटेंट है, बिना जुरिस्डिक्शन के भी लेकिन जेएम तो है, तो वो टोटल पीरियड 15 डेज का, लेकिन उस 15 में 7 तो बीत चुके, तो अब पीसी के लिए अपने जेएम साहब सिर्फ 8 दिन और, राइट, क्योंकि 7 ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कंप्यूटेशन के लिए। प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अफोरसेड, द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट द नियरेस्ट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट the records of the case together with a copy of the entries in diary relating to the case which was transmitted to him. तो ये एक ड्यूटी दी गई है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को। 7 दिन की कस्टडी तो वो ग्रांट कर सकता है, एग्रीगेट टोटल, तो टोटल में वो फर्स्ट 24 आवर्स भी इंक्लूड करते जाएंगे। उससे पहले इसकी ड्यूटी बनती है कि जो रिकॉर्ड इसके पास आया है वो नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भेज दे। मतलब पुलिस वालों ने जो भी इसके पास जमा किया, राइट, वैसे तो पुलिस वालों की ड्यूटी है और पुलिस वाले भेज भी देते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, तो आए ही इसलिए क्योंकि नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है नहीं, बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे रिमोट एरियाज में नहीं होते हैं कोर्ट्स, तो वहां पहले हम ईएम के पास ही ले जाते हैं, लेकिन ईएम भी उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ट्रांसमिट करे, राइट। पुलिस तो करेगी ही करेगी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी बनती है कि वो ट्रांसमिट करे। ये एक तरह से पुलिस पर प्रेशर ही क्रिएट करता है, राइट, कि पुलिस वाले जो हैं उन पर एक तरह से समझो कि प्रेशर क्रिएट होता है, दे हैव टू स्टे ऑन देयर टोज। सबसेक्शन 3 पर आते हैं। अ मैजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डूइंग सो। देखिए, वो चाहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो चाहे कोई भी, अगर वो इंक्रीज करता है पीरियड ऑफ डिटेंशन, पुलिस कस्टडी अगर वो इंक्रीज करता है उसका पीरियड, जैसे 24 घंटे के बाद 15वें दिन तक टाइम टू टाइम बढ़ाता जो जाता है पीसी, तो जितनी बार बढ़ाएगा उतनी बार उसे कारण बताना पड़ेगा कि क्यों वो सेटिस्फाइड हुआ और क्या वो ग्राउंड्स थे जो उसे एडिक्वेट लगे। सो ही विल हैव टू मेंशन ऑल दोस ग्राउंड्स, और उनकी एडिक्वेसी भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि कैसे उसे एडिक्वेट लगे, स्टैंडर्ड क्या उसने अडॉप्ट किया कि उसे वो पर्याप्त लगे, ये सोचने के लिए कि फर्दर डिटेंशन जरूरी है, क्या पता लगवाना वो चाहता था और कौन सी कॉन्स्पिरेसी का एंगल। जैसे वो लिखेगा कि इस केस में बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कई छोटे छोटे ग्रुप्स इसमें शामिल हैं, कोई बड़े किंगपिन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट, और इतना इंट्रिगिंग केस है कि इसमें फर्दर डिटेंशन चाहिए ताकि उन सब का नाम पता चल सके, डिस्कवरीज हो सके, और कई डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो अरेस्टेड पर्सन को भी ध्यान में नहीं आ रहे उसे ध्यान दिलाए जाएं। भाई अरेस्टेड पर्सन भी तो बड़े दिनों से ऑफेंस हो सकता है कर रहा हो, और कौन अपराधी की एपिसोडिक मेमोरी होती है
एनसाइक्लोपीडिक मेमोरी होती है, उसे सब याद ही आ जाए। वो तो उसे भी खोद खोद के याद दिलाना पड़ता है। ठीक है कि अच्छा वो यामाहा RX 100 जो था वो सचिन मित्तल के नाम से, फेक नाम क्या, सचिन मित्तल तुम ही थे क्या? जी जी याद आया याद आया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसा भी होता है इंटरोगेशन, आप देखोगे कई चीजें वो खुद भूल जाते हैं। भाई अपराध करके कौन, ज्यादातर तो लोग अपराध वैसे भी नशे में करते हैं, भूल गए, उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि नहीं तुमने मदन रुखर को भी मारा है, जरा याद करो। एक आदमी था, याद है, आम्रपाली अपार्टमेंट में रहता था, सेक्टर 17A चंडीगढ़। तब उसे याद आएगा, जी हाँ मुझे याद आया। तो समटाइम्स द ह्यूमन मेमोरी, राइट। तो जज यहां देखेगा ये चीजें कि इसमें कितना बड़े लेवल का क्राइम है, ये आदमी कितना बड़ा अपराधी है, कितने तरह के अपराधों में शामिल है, तभी जाके इससे पता चलेंगी बातें। तो वो सब चीजें लिखेगा, he has to write it. If it doesn't, then this is an illegal order. एक्सटेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी का जो ऑर्डर दिया इसने, इलीगल है, राइट। सिर्फ ये नहीं लिख दे सकता कि ऐसा लगता है, इट अपीयर्स दैट देयर इज मोर, राइट, देन व्हाट मीट्स द आईज, सो फर्दर डिटेंशन फॉर इंटरोगेशन रिक्वायर्ड ना। बताएगा वो मोर क्या लगता है जज साहब को, वो मोर क्या है। तो जज साहब लिखेंगे कि एक ही प्रॉपर्टी पर 4 बैंकों से लोन लिया गया। तो हो ना हो कई बैंक वाले भी शामिल होंगे। कोई भी रीजनेबल आदमी सोचेगा भाई एक आदमी 4 बैंक से एक ही प्रॉपर्टी पे लोन लेता है, हर बैंक वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं खुद की, अपना सर्वेयर भेजते हैं, फिर लीगल वेरिफिकेशन होती है, तो बड़े लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, बैंक का एम्प्लॉय इन्वॉल्व, बैंक का सर्वेयर इन्वॉल्व, और हो ना हो जो लीगल वेरिफिकेशन वाला वकील का लड़का इन्वॉल्व। तो ये कुछ बड़ा है, इन सब का पता करना होगा। और ये भी पता करना पड़ेगा, 4 तो दिख रहे हैं, पता नहीं इसने और कहां, क्योंकि कई बारी बैंक्स, ठीक है ना, नहीं डालते हैं मॉर्टगेज के रिकॉर्ड्स, ठीक है, वेबसाइट पे। हालांकि एक सरसाई नाम का है बना हुआ, डालना चाहिए, उस पर नहीं डालते हैं। तो ये भी पता करना पड़ेगा कि भाई ये तो तुम पकड़े गए, 4 बैंक जो रिकवरी के लिए तुम्हारे पास आए, तब उन्हें पता चला कि यार ये तो हम बेवकूफ बन गए, बाकी और कितने हैं वो भी बताओ। तो सेंट्रल बैंक का भी है, कैनरा बैंक का भी होगा, बैंक ऑफ इंडिया का भी होगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी होगा, राइट। कुछ और पता भी करना है, क्योंकि बंदा किए पे किए जा रहा है, हैबिचुअल है ये, राइट। कलर्ड फोटोकॉपी का इस्तेमाल करके, तो क्या पता और किया होगा। जो 4 कर चुका है पहले, वो आगे 10 भी कर चुका होगा। बैंक भी तो इंडिया में बहुत है, ये भी हो सकता है कि साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिया हो। देखो जज को भी पता है अपराध कैसे कैसे हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, आप क्या करते हो कि एक ही पेपर 20 एजेंट्स को देते हो, और टाइम फिक्स रहता है 11 से 12 के बीच में हर बैंक में एक साथ अप्लाई, राइट। अब होता क्या है कि हर बैंक में एक साथ एप्लीकेशन चुकी गई है, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले कि शरीफ बैंक सरसाई पे चढ़ाए, तब तक दूसरे बैंकों से मिल चुका पैसा। पर्सनल लोन में यही धांधली होती है। आपकी एलिजिबिलिटी है पर्सनल लोन की 5 लाख और आपको चाहिए 20, तो 4 बैंकों में एक ही टाइम पे। अब ये ना कहना कि सर आप तो अपराध करना सिखा रहे हैं, जज होने के नाते तुम्हें जानना चाहिए कि अपराध कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये जज साहब लिखेंगे कि डर है कि साइमल्टेनियस एप्लीकेशंस ना हुए हो और 20 बैंकों में, HDFC में भी हो गया हो, राइट, ICICI में हो गया हो, और पता नहीं कहां कहां हो गया हो। तो ये सब पता करना होगा, क्योंकि बंदा कई बार कर चुका है। 4 तो पकड़े गए, तो जो 4 कर सकता है 40 और कर बैठा होगा, ये भी पता करना जरूरी। तो फिर जज साहब ये सारी चीजें जब लिख कर देंगे, तब हुआ एडिक्वेट ग्राउंड। जज साहब को लगना नहीं चाहिए, उनके लगने पे हम नहीं विश्वास करेंगे। He has to give objective reasons. That is why satisfy word ही काफी नहीं है।
तभी तो इस सेक्शन में सेटिस्फाइड एंड एडिक्वेट ग्राउंड्स दो शर्तें रखी। आमतौर पे सेटिस्फाई भी लिखने से काम चल जाता है, इफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, लेकिन यहां पर 167 में एक अतिरिक्त शर्त डाली कि न सिर्फ संतुष्ट बल्कि एडिक्वेट ग्राउंड जो है ना, वो सब्जेक्टिविटी से ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ले जाता है इस कंडीशन को कि जज साहब दिल से आप संतुष्ट हो गए, अच्छा लगा सुनकर, अब आप वो ग्राउंड्स भी लिख दीजिए जो सबको संतुष्ट कर दे। आप भी संतुष्ट, वकील साहब भी संतुष्ट, एक्यूज भी संतुष्ट, जनता भी संतुष्ट कि हाँ बनता है कस्टडी, राइट? सो इट इज नॉट ओनली पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इट इज नॉट ओनली व्यक्तिगत संतुष्टि, वस्तुनिष्ठ संतुष्टि होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन की बात की जा रही है। इसलिए सेटिस्फाइड के साथ साथ एंड कंजंक्शन के साथ एडिक्वेट ग्राउंड्स भी मेंशन किया। हमने कई जगहों पर पहले भी सेटिस्फाई वर्ड पढ़ा है, क्या वहां पे एंड के साथ एडिक्वेट ग्राउंड्स पढ़े? कहीं पढ़े सफिशिएंट ग्राउंड्स, तो वो एडिक्वेट ग्राउंड्स है, राइट? कई बार नहीं भी पढ़े। तो इसका मतलब कि स्टैंडर्ड जो है यहां पर ज्यादा हार्ड है, आसान नहीं है पीसी को बढ़ाना। पीसी को बढ़ाना रूटीन मैनर में नहीं होना चाहिए कि पुलिस वाला आया है गिड़गिड़ा रहा है, सर थोड़ा और पूछ लेते, ठीक है ना, कल रात में शाम को पूछ नहीं पाया, पेट्रोलिंग ड्यूटी पे गया हुआ था। हालांकि अब अस्थाना साहब ने अच्छा किया है, लॉ एंड ऑर्डर को अलग कर दिया, इन्वेस्टिगेशन को अलग कर दिया, पहले प्रॉब्लम आती थी। तो इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा। और जज साहब भी मान गए कि हाँ यार इसको भी टाइम नहीं मिली, चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी में लगा हुआ था रात भर, ठीक है तो चलो और टाइम ना, दिस कैन बी द ग्राउंड, दिस कांट बी। तो रीजंस बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, एंड शुड सेटिस्फाई द थर्ड पर्सन आल्सो। Any reasonable prudent person in the place of the magistrate should also get equally satisfied. So here section 167 does not allow the leverage of only personal satisfaction to the judge. It also requires the judge to satisfy one and all by his reasoning. अपने कारण को बताते हुए सबको संतुष्ट करने वाली बात कहिए, right? Any magistrate other than the chief judicial magistrate making such order shall forward a copy of his order to the CJM. अब याद है ना CJM भी JM था, तो सेक्शन 167 में जहां जहां JM पड़ा वहां CJM हो सकता है, डायरेक्ट मैटर CJM के पास ही पहुंच गया। लेकिन अगर वो सिर्फ JM के पास पहुंचा है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि जो भी उसका ऑर्डर है अंडर सेक्शन 167, राइट, उस ऑर्डर की कॉपी वो सीजेएम को अपने आप फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि सीजेएम उसका बॉस है, राइट? इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय अ मैजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड। अब आ जाते हैं खास किस्म के ऑफेंसेस में जो कि समन्स केस कहे जाते हैं। तो वारंट्स केस और समन्स केस में क्या फर्क है? डेफिनेशन सेक्शन में देखिए, what is the difference between warrants case and summons case? Difference is very simple. Section 2 में जाओ, 2 years का कंडीशन, क्या है? ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कि सजा कितनी है? Below 2 years. Below 2 years. Exceeding 2 years. इसका मतलब कि up to 2 इंक्लूडेड, जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट अप टू 2 है, 2 इंक्लूडेड, वो समन्स केस है। यानी कि उसका जो ट्रायल होगा वो समन्स केस की तरह होगा। समन्स केस का एक अलग चैप्टर है ट्रायल में,
उसमें हमें बताया जाएगा कि समन्स केस की ट्रायल कैसे होगी। देख के ही समझ में आ जा रहा है कि समन्स केसेस जनरली बहुत ग्रेव नेचर के केसेस नहीं होते हैं। दी ऑफेंसेस आर नॉट वेरी ग्रेव इन नेचर, राइट, ग्रेविटी उनकी कम होती है। और वारंट्स केस जिसे थोड़ा ज्यादा ग्रेव माना जाता है। तो अगर वो समन्स केस है तो समन्स केस में तो स्टैट्यूट ने एक और हक दे दिया है, देखो, वन मोर राइट, कि अगर 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड, जिस दिन से अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ उस दिन से 6 महीने बीत गए, केस के 6 महीने नहीं, केस तो चलने में 4 साल भी लग जाते होंगे। एक 4 साल का केस अभी हमारे पटियाला कोर्ट में चल भी रहा है, 2017 में ही केस शुरू हुआ था। बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन का कितना भी टाइम ले कोई दिक्कत नहीं, अरेस्ट किस दिन किया उस दिन से, उस दिन को इंक्लूड करते हुए 6 महीने कैलकुलेट करो। तो फ्रॉम द डेट ऑन विच द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड। तो अब 6 महीने बीत गए, इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, समन्स केस है, छोटा मोटा केस होगा। अब आदमी को इनफाइनाइट पीरियड तक, अनंत काल के लिए, राइट, एक क्रिमिनल केस की तलवार उसके सर पे टंगी रहे, ये अब अटर वायलेशन है उसके ह्यूमन राइट का। तो इस वजह कर द अक्यूज वाज अरेस्टेड, मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर। तो यहां पर मैजिस्ट्रेट साहब आदेश देंगे, शैल, तो मैजिस्ट्रेट को देखना है। यहां पर मैजिस्ट्रेट इज अ कस्टोडियन ऑफ द राइट्स ऑफ अक्यूज्ड अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का ये मैजिस्ट्रेट क्या है, कस्टोडियन है, ठीक है। तो फिर उसे ऑर्डर देना होगा, तो या तो तुम एप्लीकेशन ही लगा लो, डिफेंस काउंसिल अगर तुम्हारा ठीक है तो लगा ही लेगा। 6 महीना गिनते 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 6 महीने बीतने के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुई, चार्जशीट नहीं फाइल हुई, एप्लीकेशन लगा देगा वो, सेक्शन 167 सब सेक्शन 5 की। लेकिन एप्लीकेशन लगे तभी मैजिस्ट्रेट साहब ये करें जरूरी नहीं है, मैजिस्ट्रेट हैज टू डू इट ऑन हिज ओन आल्सो। वी मस्ट नॉट फॉरगेट that in his judicial capacity he is the custodian of the rights of the accused person. हिफाजती है वो, अभियुक्त के अधिकारों का हिफाजती है वो, he is the custodian। तो इसलिए उसे खुद भी करना है। पुलिस वाले भी इस बात को मैजिस्ट्रेट के सामने ला सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी ला सकते हैं, लाते नहीं है, लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज की बात कर सकता हूं, क्योंकि लाना चाहिए, क्योंकि वो एक्यूज के खिलाफ नहीं, वो ट्रुथ को डिस्कवर करने के रास्ते पर चल रहे हैं। गलती से वो समझ लेते हैं कि हमको जो करना है कि उसके खिलाफ ही करना है। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि ऐसा नहीं, राइट, अधिकारों का कस्टोडियन तो हम सब हैं। इज नॉट द पुलिस ऑफिसर ऑल्सो अ कस्टोडियन ऑफ आवर राइट्स? वो है क्यों फिर? इज नॉट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट? Is not the judicial officer himself a custodian of our rights? Yes. इस स्टेज पर और कौन देखेगा कि मेरे अधिकारों का अवमानना ना हो रहा हो, अतिक्रमण ना हो रहा हो, राइट। शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो वो इन्वेस्टिगेशन बंद कर देगा। तो यहां पर एक राइट क्रिएट किया गया है इन फेवर ऑफ द अरेस्टेड पर्सन दैट द इन्वेस्टिगेशन शैल बी स्टॉप्ड, राइट। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर पुलिस ऑफिसर अब तक की इन्वेस्टिगेशन के सारे रिजल्ट्स कोर्ट के सामने रख दे, राइट, और बताए कि इन सारे रिजल्ट्स को देखकर हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि इस बंदे ने ऑफेंस किया है, और हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है दैट द ट्रायल वुड रिजल्ट इन हिज कन्विक्शन, जो ट्रायल है इसका समापन इसकी दोष सिद्धि में होगा। तो लगभग 70-80% इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। बस माय लॉर्ड इतना सा बच गया है कि वो अगर ले आए तो एक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा,
और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो बस इतना सा कसर रह गया है योर ऑनर, इतना सा कसर रह गया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तक इसे ले जाने के लिए। अभी हम लाए हैं इसको हाई प्रोबेबिलिटी पर, और हाई प्रोबेबिलिटी से अभी से ले जाना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बस उतना सा कसर है योर लॉर्डशिप। तो अगर लॉर्डशिप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, राइट, स्पेशल रीजंस को देखते हुए, स्पेशल वर्ड देखिए लिखा हुआ है, तो यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बड़े खास कारण बताने पड़ेंगे, राइट, न्याय का हित, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तभी जाकर इन्वेस्टिगेशन वो कंटिन्यू होने देगा, अन्यथा वो इस इन्वेस्टिगेशन को रोक देगा। उसका पावर है, अरेस्टेड पर्सन का राइट है, पुलिस की लाइबिलिटी है, राइट। वेयर एनी ऑर्डर stopping further investigation into an offense has been made, the sessions judge may, if he is satisfied, on an application made to him or otherwise, तो otherwise मतलब suo motu भी, अपने आप से भी, सेशंस जज को अचानक पता चला एमएम के कुछ ऑर्डर्स, that further investigation should be made। अब सेशंस जज जो कि इससे एक बड़ा है अपने जेएम से, पता है ना, सेशंस जज का एक जनरल कंट्रोल होता है सभी जेएम तक। जेएम का कंट्रोल वैसे सीजेएम के पास होता है, लेकिन सीजेएम से भी सीनियर सेशंस जज है, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइजेस अ जनरल कंट्रोल ओवर ऑल द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, राइट। तो मान लो कि प्रोसिक्यूशन पुलिस वाले सेशंस जज तक पहुंच गए कि सर देखिए ना, मैजिस्ट्रेट साहब ने स्टॉप कर दिया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हमने उन्हें कुछ स्पेशल रीजंस बताए थे लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं हुए, आप एक बार देख लो अगर आप कन्विंस्ड होते हो तो। गौर कीजिएगा कि एक बार जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया तो अब वो हेल्पलेस है, वो अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी रिव्यू का प्रावधान देता ही नहीं। देयर इज नो रिव्यू इन सीआरपीसी। सो वंस एन ऑर्डर हैज बीन साइंड बाय अ जज, he cannot review his own judgment। तो ये जो मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो या सीजेएम हो, अगर तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर दी तो अब वो इन्वेस्टिगेशन फर्दर कंटिन्यू कभी करा नहीं पाएंगे। इसके लिए अब जाना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को सेशंस जज के पास, या सेशन जज ने खुद ही रिपोर्ट मंगवा ली, बट जनरल कंट्रोल तो है, एंड ही कम्स टू नो, ठीक है, या विक्टिम भी चला जाए, और अदरवाइज में कंप्लेनेंट भी जा सकता है, और अदरवाइज में ये अपील नहीं, गौर कीजिएगा, दिस इज नॉट एन अपील, राइट, एप्लीकेशन है। तो कंप्लेनेंट हिमसेल्फ मे गो टू द सेशंस जज एंड ब्रिंग टू हिज नोटिस दैट व्हाट हैज हैपेंड। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ऑर्डर कर सकता है, राइट। और ऑब्वियसली दिस ऑर्डर विल बी सब्जेक्ट टू बेल। अगर इस बीच बेल मिल गई है, राइट, तो जाहिर सी बात है अरेस्ट तो होगा नहीं। अब गौर करने की बात यह है यहाँ पर कि सब सेक्शन 5 में आप देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ 6 मंथ्स है। इसका कैलकुलेशन आप किस दिन से करेंगे? जिस दिन से उसका अरेस्ट हुआ है, न कि जिस दिन से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई या जिस दिन से एफआईआर लॉन्च हुआ, राइट। क्या सबसेक्शन 5 की एप्लीकेशन के लिए यह जरूरी है कि इस पूरे पीरियड में जो पर्सन है अरेस्टेड रहे? मतलब क्या वो पर्सन कस्टडी में है तभी ऐसा होगा, या जनरली वो पर्सन अगर बेल पे भी बाहर है तो भी विद इन 6 मंथ्स अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो क्या सबसेक्शन 5 एम्पावर करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स, या उसका अरेस्टेड होना जरूरी है? भाई सबसेक्शन 5 में तो ऐसी कोई कंडीशन लिखी हुई नहीं, देयर इज नो सच कंडीशन मेंशन्ड इन सबसेक्शन 5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए सेशंस जज के सामने जब मैटर गया तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इस दौरान वो कस्टडी में रहा हो, अब बेल मिल गई, हो सकता है वो पहले से बेल पे हो, राइट,
हो सकता है कि सेशन जज अब बेल दे दे, ये भी पॉसिबल। एक तरफ सेशन जज के पास प्रोसिक्यूशन पहुंच गया, दूसरी तरफ सेशन जज के पास एक्यूज्ड पहुंच गया बेल लेने के लिए, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ बेल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 167। तो आई होप दिस इज अ बिग सेक्शन बट वी हैव डन इट। कुछ खास नहीं मिला हमें इसमें, जो चीजें मिली वो हमने डिस्कस भी कर ली। तो लेट अस रिकैपिटुलेट what important things did we learn in section 167 before we enter into our own bare act. Let's see आज हम क्या सीख पाए, ठीक है। And very honestly I would say that looking at your practice of changing the forum of taking classes is demotivating me, and therefore I may change the methods, right, in order to penalize who are using the two fora interchangeably at their volition, at their whims and fancies, and in a very arbitrary manner. What is the use of coming here? Throughout the day, I am giving legal consultancy to certain segments of society. I am tired myself, and still I wait here in Patiala House Courts, because sometimes I have to be present elsewhere. I make it a point that I should come here at least 2 hours before the class, or sometimes 1 hour before the class, only for the purpose of giving you offline classes, which gives me more benefit. You know, my motivation is not just the crowd. My motivation is that how far I am able to become useful for you. If I'm not getting the results, this class is useless for me. I have other sources of income. This is not at all the source. Right, and being a member of the association, this is not a profit-seeking forum for me. Though the teachers whom I have hired for minor laws or for general studies, they will get benefited from us, but we are not seeking any profit here. So the only motivation for us will be the utility of this forum. Online is not always a very good option, though it is an alternative, and we have given you this alternative so that the students in the remote areas living at distant places should also get benefited by the initiative of this New Delhi Bar Association, because it is a benevolent initiative, right? And above all, this Bar Association is capable of giving you the most competent teachers who have the practical knowledge also, practical experience also. And many of us sit with ADJ and district judges, because many batchmates are ADJs, many batchmates are district judges now. And we have the inkling as to what should be the method of preparation, right? So New Delhi Bar Association is actually a link between your aspiration and the court, and that is why we have chosen the court premises, right? But if you make it a habit, then I will also make it a habit. I will stop coming to this premises, and in that way my physical proximity, which will help you in clearing many doubts, right? पता नहीं, हो सकता है कि अभी शायद हमने अभी पूरी CRPC की नहीं है, and that is why we don't have many questions. लेकिन अब जो कल से टेस्ट शुरू होंगे सब्जेक्टिव भी, जो अब तक हम टॉपिक्स कर चुके, तुम नहीं कर पाओगे तो तुम डाउट्स पूछोगे, where offline will be more beneficial for you. Though I will try my best for the online students also, but then the time will be different, right? क्योंकि मैं एक बार दो अलग-अलग फोरम पे डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता। टीचिंग तो एक साथ की जा सकती है, टीचिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली, but doubts have to be cleared on individual basis, right? You come here, you have your own problems. Moreover, every person cannot be treated equally. You know, the same shoe doesn't fit all. Do we know that? So if Shekhar comes to me with a doubt, my interaction with Shekhar
will help me to judge as to what are the capabilities of Shekhar, and then I will advise him accordingly. I can't, there has to be a general answer writing skill, true, which is generally applicable for all the students. But some subjective elements should also be there. I should not thrust upon you my answer writing skill. जरूरी नहीं है कि सबके आंसर एक जैसे शुरू हो सकता है तुम्हारा अपना एक नेचुरल फ्लेयर है राइटिंग का, मैं उसके डिफेक्ट्स दूर करूंगा, न कि मैं अपना नेचुरल फ्लेयर, मेरा अलग, वो आपको मेरे नोट्स में भी दिख गया होगा। कई बार मैं सब सेक्शन 4 से पहले शुरू करता हूं। आई हैव माय ओन लॉजिक इन माइंड, तो जो मैं प्रेजेंट करता हूं मैं अपने लॉजिकल फ्लो में प्रेजेंट करता हूं, हो सकता है आपका कुछ और हो। तो एक तरीका तो ये हुआ कि वन मॉडल फिट्स ऑल, एक ही कपड़ा सबको पहना दो, वो गलत है। 50 आदमी एक जैसी लैंग्वेज में अगर लिखने लगे, अगर ऐसा करा ही दिया तब तो गए काम, सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होगा, राइट। तो जरूरी यह है कि इंटरैक्शन हो। द कोल्ड लाइन्स, दैट इज द ऑनलाइन थिंग, डज नॉट ऑफर दिस स्कोप। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट इवन दो आई एम टेलिंग यू, I will try my best, much better than what others are doing, because I have no competitor, I have no rival. But at the same time, I insist that those of you who regularly study online should also come on certain occasions for offline class, if at all they can afford to, being in Delhi or NCR, right? Otherwise, the very purpose of New Delhi Bar Association will be defeated. तो जो मकसद है, उस मकसद में आपको साथ रहना होगा, राइट। ऑनलाइन क्लास का क्या है, मैं तो अपने कमरे में भी बैठा ले सकता हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव वन ऑफिस इन नेताजी सुभाष प्लेस, अनदर इन साकेत, एंड बोथ ऑफ देम अफोर्ड मी लग्जूरियस सीट्स आल्सो, मच बेटर देन दिस वन। तो वहां बैठ के मैं क्लास ले लूंगा। व्हाट्स द पर्पस ऑफ कमिंग हियर, राइट, कि ताकि आप क्वेश्चंस लेकर आए, आप कुछ करें, राइट। अपार्ट फ्रॉम 2 आवर क्लास, 1 घंटा कुछ तो लिखोगे, कुछ तो करोगे, राइट। वो इंटरेक्शन जब तक नहीं होगी तब तक ये सिर्फ और सिर्फ कोल्ड लेक्चर होगा जो किसी काम नहीं आ रहा, राइट। आपके लिए ये जरूर किया है, और ये वाले नोट्स में कभी नहीं दूंगा, मेरे ही पास नहीं। यकीन मानो ये काम मैं हर बैच के लिए हमेशा करता रहा, लेकिन हर बार फ्रेश किया है मैंने। Why? Because every time I am also growing. यही मेरा बेयर 3 साल पहले का आप देख, आज वाला बेयर उससे बेहतर है, राइट। उससे भी बच्चे सेलेक्ट हुए। दिल्ली में तो ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जहां पर मेरे बच्चे जज नहीं। नाम लेना एथिकल नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन वो पॉसिबल होता है व्हेन यू डू पर्सनल इंटरैक्शन। हम फैक्ट्री सेटअप वाली टीचिंग के ही तो विरुद्ध हैं, सबके लिए तो नहीं कर सकते थे। अब आप यूपीएससी इंस्टीट्यूशंस में जाए, चाहे राउज आईएएस हो, या फिर राउज आईएएस में भी 7 इयर्स तक मैं जुड़ा रहा हूं पार्ट टाइम, ओनली फॉर टीचिंग लॉ ऑप्शनल, या कोई भी हो, वाजीराम हो यूपीएससी वाले, शुभ्रा रंजन है, I know her personally also, she teaches political science. अब ये लोग क्या है कि 400 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये फैक्ट्री जैसा हो गया काम, नहीं? फोर्ड ने जो फैक्ट्री सिस्टम बनाया था, नहीं, फोर्डिज्म जिसको कहते हैं, तो फैक्ट्री वाली बात हो गई, फैक्ट्री अप्रोच ऑफ टीचिंग, राइट। इसमें जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं उनका रेशियो निकाल के देखो आप। If they publish 10 photographs, तो डिवाइड कर दो उससे 1800 से, जो पूरे साल पढ़ाया है, तो 10/1800 आप देखिए क्या है। क्योंकि कई बच्चे कर सकते थे लेकिन उनको पर्सनल अटेंशन नहीं मिली, राइट। एनडीबीए को काउंसलर्स की कमी नहीं, सीनियर्स की कमी नहीं, राइट। और वी आर नॉट गोइंग टू हैव मोर इनटेक आल्सो, वी हैव
मैंने तब भी कहा था कि स्पेशियो टेम्पोरल कंस्ट्रेंट्स है, हमारे टाइम का भी कंस्ट्रेंट है और स्पेस का भी कंस्ट्रेंट है। हम लेंगे ही उतने को जितने की इसमें एकोमोडेट हो पाए, और ऑनलाइन भी जितने की मैं ऑनलाइन लोगों के कॉपीज चेक कर पाऊं। मैं 400 लोगों की कॉपीज नहीं चेक कर पाऊंगा एट दिस स्टेज, unless and until my team is bigger. We will look for a bigger team in future, right? Let's see the response. तो पर्पस यही था कि हम सबके लिए तो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन एटलीस्ट उनके लिए तो कर सकते थे जिनका सब्जेक्ट लॉ है, क्योंकि हम लॉ ही पढ़ा सकते हैं फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही पढ़ा सकते हैं, तो लॉयर्स को सीनियर लॉयर्स ही पढ़ा सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से हम कुछ और नहीं कर सकते, बार काउंसिल हम पे एक्शन ले लेगी, ठीक है? Anyways, so let's move ahead now. We have completed discussion of section 167. तो सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 अपने बेयर एक्ट में हम देख लेते हैं फास्ट जल्दी से। अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी। पहली शर्त है कि एक बंदा अरेस्ट हुआ है, कस्टडी में डिटेन्ड है। कीप राइटिंग। दूसरा, इट अपीयर्स दैट, अपीयर्स ऑब्वियसली किसको? पुलिस ऑफिसर को, दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, जैसा कि सेक्शन 57 में पढ़ा, 24 घंटे में नहीं हो सकता कंप्लीट। देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड। तीसरी शर्त की ग्राउंड्स हैं ये विश्वास करने के लिए वेल फाउंडेड। वेल फाउंडेड मैंने कैपिटलाइज कर दिया, मतलब कुछ सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए, कुछ मटेरियल्स होने चाहिए। सिर्फ सरमाइज, सिर्फ कॉन्जेक्चर, सिर्फ प्रिजम्पशन से काम नहीं चलेगा, राइट? सिर्फ प्रिजम्पशन से काम नहीं चलेगा, वेल फाउंडेड होने चाहिए, राइट? क्योंकि 24 घंटे दिए जा चुके हैं आपको, इसमें कुछ तो निकाला होगा आपने एक्यूज से या अरेस्टेड पर्सन से। फोर्थ है, जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। एक तो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का रैंक का होना चाहिए और उसे कुछ करना है। व्हाट? शैल फोर्थविथ, तुरंत, राइट? फोर्थविथ मतलब तुरंत। फॉरवर्ड द अरेस्टेड पर्सन या accused to the nearest judicial magistrate, और nearest judicial magistrate अगर available नहीं है, to the nearest executive magistrate upon whom the powers of JM or MM have been conferred. Forward the arrested person accused to the nearest judicial magistrate, in his absence to the nearest executive magistrate upon whom the powers of JM or MM have been conferred. लिख लिया? Yes, sir. Let's move ahead. Transmit a copy. दूसरी चीज जो वो करेगा और जरूर करेगा, transmit a copy of diary entries, जो उस केस से संबंधित डायरी एंट्रीज है उसे ट्रांसमिट कर देगा to the nearest judicial magistrate या executive magistrate, whichever may be the case. डन। सब सेक्शन 2 पर आते हैं। यहां पर दो परिस्थितियां मैंने याद होगा बताई थी आपको। एक परिस्थिति है जिसमें कि मैजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, राइट? यानी जिस मैजिस्ट्रेट के पास
एक्यूज्ड को फॉरवर्ड किया गया है, केस डायरी लेकर गए हैं, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो क्या कर सकता है फिर? He may authorize detention in police custody for a period longer than 24 hours. Period longer than 24 hours. और अगला है, he may from time to time extend the period of detention in police custody. में लिखा हुआ है, मतलब डिस्क्रेशन है उसका, करना यही चाहिए। एकदम सीधे 14 दिनों का रिमांड जो यूजुअली दे देते हैं ना मैजिस्ट्रेट्स, वो ना करके पहले 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 2 दिन, ऐसे करके होना चाहिए, होना यही चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट है, he cannot authorize detention in police custody for a term exceeding 15 days. Total 15 days, right? In the whole word मैंने कैपिटलाइज कर दिया है, तो पूर्ण रूप से वो 15 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें कि पहले 24 घंटे जो बिताए वो शामिल है, तो 14 दिन बचे आपके पास। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारा नोट प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्रोवाइजो बी टू सबसेक्शन 2 द अक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ये बी बाद में आता ना ए के, लेकिन सुटेबल यही था, इसलिए इसे यही लिखेंगे, राइट। तो अक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट एवरी टाइम द पीसी इज sought टू बी एक्सटेंडेड, राइट। जेसी के लिए भी ये होना चाहिए, कंपलसरी नहीं। वीडियो लिंकेज भी अगर नहीं काम कर तो भी चल सकता है, लेकिन एक तरह से समझ लो कि बाय कन्वेंशन अब ये अधिकारी बन गया है कि एक्यूज्ड की प्रेजेंस होनी चाहिए। जब जब सी बढ़े, कस्टडी एक्सटेंड हो, तो एक्यूज्ड को रहनुमाई के लिए बुला ही लिया जाए, उसे रहना चाहिए, राइट। सो एवरी टाइम द पीसी इज sought टू बी एक्सटेंडेड, he must be produced before the magistrate. Unless the accused is present before him, he cannot extend PC. बड़ा सख्त जुबान यहाँ पर इस्तेमाल किया है, नहीं कर सकता वो पीसी एक्सटेंड, इलीगल होगा, उसे अनलॉफुल डिटेंशन मान लिया जाएगा, राइट। लिख लिया। नेक्स्ट है, अब हमारा वो मैजिस्ट्रेट आ गया जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। द मैजिस्ट्रेट does not have jurisdiction. The nearest magistrate to whom the arrested person has been taken does not have jurisdiction to try or commit the case. तो निकटतम जो मैजिस्ट्रेट है जिसके पास ले जाया गया, संयोगवश उसके पास अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, तो क्या होगा? तो दो परिस्थितियां होंगी, ठीक है। पहली परिस्थिति, देयर मे बी 2 सिचुएशंस, आपके बोर्ड पर है, देख लीजिए। हम किस मैजिस्ट्रेट के सामने हैं जिसके पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं, तो 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। एक, इफ ही कंसिडर्स फर्दर डिटेंशन नेसेसरी, यदि तो उसे फर्दर डिटेंशन जरूरी लगता है कि होनी चाहिए, देन he may authorize detention in police custody for a period longer than 24 hours. वही मतलब जो ऊपर हो सकता है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विथ ज्यूरिसडिक्शन जो कर सकता है, वो विदाउट ज्यूरिसडिक्शन वाला भी कर सकता है, रैंक तो वही है, ठीक है, छोटी रैंक का तो वो है, रैंक तो वही। From time to time extend the period of detention in police custody. He cannot authorize detention in police custody for a term exceeding 15 days. वही चीज जो ऊपर था, 24 घंटे से ज्यादा दे सकता है, समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम लिख लीजिएगा यहाँ पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम
extend the period of detention in police custody, और तीसरा, he cannot authorize detention in police custody for a term exceeding 15 days in the whole. वही चीज जो ऊपर थी वो आ गई यहां पर, ठीक है। अब दूसरी परिस्थिति क्या है हम जानते हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि मैजिस्ट्रेट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है और उसे नहीं लगता कि फर्दर डिटेंशन होनी चाहिए। लिख लिया। सिचुएशन बी, if he considers further detention unnecessary, then he may order the accused to be forwarded to the magistrate having jurisdiction. तो आप इसे ट्रांजिट रिमांड कह सकते हैं, राइट। रिमांड टू बी ट्रांजिटेड to the magistrate having jurisdiction, so that let the magistrate having jurisdiction decide what is to be done by this, what is to be done to this arrested person, though personally he has made an opinion that further detention is not necessary, right। अब एक वैसे ही छोटा सा सवाल यहां पर कि क्या ऐसा हो सकता है कि या क्या ये जरूरी है कि ये मैजिस्ट्रेट जब ट्रांजिट रिमांड दे रहा हो, पुलिस को कह रहा हो कि जाओ इसे मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन उसके पास लेके जाओ ट्रांजिट में, तो उसमें क्या अपनी ओपिनियन भी वो लिख के ट्रांजिट कर सकता है? कि मतलब उसने ये जो ओपिनियन है ना, नहीं, जरूरी नहीं। क्यों? ट्रांजिट किया है मतलब कि उसे फर्दर डिटेंशन का औचित्य नजर नहीं आ रहा है। भाई जो उसके खुद के पावर में था करने का वो न करके वो ट्रांजिट कर रहा है, मतलब ऑब्वियस है कि परहैप्स ही हैज मेड एन ओपिनियन दैट दिस इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, will this opinion of this magistrate weigh upon the decision of the other magistrate having jurisdiction? क्या वो जो मैजिस्ट्रेट है जिसके पास jurisdiction है उसके पास जब ये ट्रांजिट होकर आया, यस, ये हम सोचेंगे नहीं। हम क्यों सोचे? वो इसलिए नहीं क्योंकि पहले ही बता दूं कि एक दूसरे मैजिस्ट्रेट का ओपिनियन मेरे पावर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट। एक दूसरे मैजिस्ट्रेट का ओपिनियन, एक और बात बता दूं, मेरे पावर, जो मेरे पावर है वो पावर है ही इसीलिए कि ओपिनियन मैं बनाऊंगा, राइट। इवन माय सुपीरियर कोर्ट cannot direct me to form a particular opinion. How can? तुम मुझे विचार बनाने के लिए कह रहे हो जो तुम चाहते हो, तो मुझे कही क्यों रहे हो? तुम वही कर लो। अब मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि नहीं तुम सोचो कि ये ऐसा है, सोचने के लिए कैसे तुमसे कह सकता हूं? फिर तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि मानो कि ऐसा है, आपके पास कोई चारा नहीं। जब सोचने की शक्ति दे दी, अपना ओपिनियन फॉर्म करने की शक्ति दे दी है, तो कोई निर्देश कैसे दे सकता? तो जो मेरा सुपीरियर मेरे साथ नहीं कर सकता, एक इक्वल रैंक का मैजिस्ट्रेट कैसे उसकी ओपिनियन मेरे ऊपर, तो हैज नो इन्फ्लुएंस। वहां पर अरेस्टेड पर्सन ये नहीं कह सकता कि सर उन मैजिस्ट्रेट साहब ने तो कहा था कि डिटेंशन आवश्यक नहीं। दूसरा मैजिस्ट्रेट इस ओपिनियन से बाउंड नहीं है, right? He has the authority to formulate his opinion. और सच तो यह है कि कहीं ना कहीं वो मैजिस्ट्रेट जिसने कि ट्रांजिट किया है खुद भी डिलेमा में रहा होगा, तभी उसने ऐसा किया है, राइट। एनीवेज, अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। 167 का जितना मुझे यहां कराना था मैंने करा दिया। बेयर एक्ट से तो हमने पूरा कर लिया, वी हैव अंडरस्टूड।
लेकिन अब यहाँ पे मैंने और बाकी पार्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि 167 का पूरा हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें स्टैट्यूटरी बेल का भी प्रोविजन, राइट। तो वो अब ड्यू कोर्स में आएगा। सेक्शन 154 से तो हम शुरू कर नहीं, नाउ वी विल रीड अ न्यू चैप्टर, राइट। इन्वेस्टिगेशन तो हम कर ही रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में हम ये पढ़ लेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, ये है आफ्टर अरेस्ट प्रोसीड्योर, याद है ना चैप्टर। गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रियाओं में तीसरी तो आपने पढ़ ली थी कि भाई 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है, और कुछ परिस्थितियों में 24 के बाद भी एक्सटेंशन हो सकती है, वो कर लिया हमने। अब हम आते हैं अरेस्ट के बाद एक अगली प्रक्रिया में जो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, राइट। यहां पर गिरफ्तार हुए व्यक्ति की पहचान होती है। ये हमें मिलेगा सेक्शन 54A में। सेक्शन 54A बेयर एक्ट से पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना यहां पर है काफी। सेक्शन 54A कहता है कि पुलिस ऑफिसर की प्रार्थना पर, तो पहली चीज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, राइट। दूसरी चीज कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, तो पुलिस ने किससे रिक्वायर किया है, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, दूसरी शर्त, राइट। तो पुलिस ने क्या मांगा है, पुलिस ने कोर्ट से अनुमति मांगी है कि क्या मैं एक्यूज्ड को कुछ लोगों के सामने पेश करूं इसकी पहचान के लिए, फॉर हिज प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, राइट। अब यहां पर एक बात बता दूं, पुलिस वाले बिना अनुमति के आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे प्रस्तुत नहीं कर सकते गैरों के सामने, राइट। मैं कोई प्रदर्शन की चीज नहीं, इट इज वायलेशन ऑफ माई राइट टू लाइफ, और अब तो राइट टू प्रिवेसी, राइट टू डिग्निटी भी आ गया, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तभी आपने गौर किया होगा अलाउ किया जाता है अरेस्टेड पर्सन को काले रंग का कपड़ा या अपना फेस कवर करने के लिए, उसका राइट है। पुलिस वाले उसे इस राइट से डिप्राइव नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट, और वो भी कौन सा कोर्ट, जिसके पास उस ऑफेंस को ट्राई या कमिट करने की ज्यूरिसडिक्शन हो, वो ना ये आदेश पे। तो गौर करने की चीज है कि यहां पर पुलिस को पावर ही नहीं, कोर्ट के पास पावर है। और गौर करने की बात सबसे ये है कि ऑर्डर यहां पर पुलिस को नहीं दिया जा रहा कि जाओ उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए पेश करो गवाहों के सामने। ऑर्डर एक्यूज्ड पर्सन को दिया जा रहा है, अरेस्टेड पर्सन को, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, कि तुम अपने आप को प्रस्तुत करो, या जब तुम्हें प्रस्तुत किया जाए तो प्रतिरोध ना करो, डोंट रेजिस्ट इट। सो दिस इज एन ऑर्डर नॉट गिवन, यही मैं पीटी में आपको फंसाऊंगा। अंडर सेक्शन 54A a magistrate gives direction, right, A, to the police officer to take the arrested person for identification, B, to the accused person to subject himself for identification। और फिर इसी में और एक एक चीज, आइडेंटिफिकेशन बिफोर द विटनेस, आइडेंटिफिकेशन बिफोर द कंप्लेनेंट, ये भी जोड़ दो और तब कहूं कि कौन सा सही। तो जो सेक्शन में नहीं है वो भी अगर हो, और होता हो शायद, लेकिन फिर भी अगर वो पीटी में है तो आंसर गलत माना जाएगा। तो इस 4 ऑप्शन में एक ही आंसर सही है, नियरेस्ट वही। हालांकि आइडेंटिफिकेशन के लिए किसके सामने पेश करो, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आप यहां पर एक्यूज की पहचान करा रहे हैं। इस पहचान का कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं, राइट। गवाह तो कोई भी हो सकता है, अपराध का गवाह, अपराध का गवाह हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसने अपराधी को देखा ही था, अपराध होते हुए देखा, अपराधी को पीछे से देखा। तो विटनेस बड़ा वेग वर्ड हो गया,
4 ऑप्शंस में विटनेस वेग वर्ड हो गया, राइट। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि एक्यूज की आइडेंटिटी के लिए पेश भी करेंगे तो किसके सामने करेंगे, जिसके सामने करेंगे वो गवाही होंगे। लेकिन जब जनरली मैं कहता हूं गवाह, तो गवाह ऑफ अपराध भी हो सकता है, राइट। और गवाह ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपराध देखा ना हो लेकिन एक्यूज की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर देंगे। जिसने भागते हुए तौलिए से खून पोंछते हुए किया, अपराध ना देखा हो बेशक। गेट माय पॉइंट। तो आइडेंटिफिकेशन बाय विटनेस जनरल सा लगता है, इसलिए सबसे निकटतम उत्तर क्या है 4 ऑप्शंस में से? निकटतम उत्तर है, क्लोजेस्ट आंसर है, राइट, डायरेक्शन टू द एक्यूज्ड पर्सन और डायरेक्शन टू द अरेस्टेड पर्सन टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू identification. Is that clear? By others, if it is found necessary for the investigation of the offense. यदि ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट को उचित लगता है, जरूर लग सकता है कि जहां पर ऑफेंस जो है हुआ, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, एफआईआर हुई, लेकिन अननोन पर्संस के खिलाफ, तो जहां पर अननोन पर्संस के खिलाफ एफआईआर हो, इसका मतलब कि जो कंप्लेनेंट है या जो विक्टिम है उसने खुद ना देखा, लेकिन ऑफेंस करके भागते समय हो सकता है उस एक्यूज्ड पर्सन को या जो भी एलिजेडली जिसने ऑफेंस किया है उसे लोगों ने देख लिया हो। भागने के क्रम में हो सकता है कहीं उसने अपने फेस से मास्क हटाया हो, या हो सकता है मास्क पहना ही नहीं था, कंप्लेनेंट ने उसे चूंकि मारा सर पे मारने के बाद जब तक कंप्लेनेंट घूम के देखता बेहोशी की हालत सी हो गई, ये भाग रहा है, तो उसने उसकी बस काले रंग की शर्ट भागता हुआ आदमी देखा बस। लेकिन उसे आसपास किसी ने तो देख लिया होगा, प्रेस वाले ने देख लिया होगा, राइट। खेतान साहब के सर्वेंट जो कि सब्जी लेकर आ रहे थे मंगल बाजार से, उसने देख लिया होगा कि जी हाँ शेखर वर्मा तो हड़बड़ाहट में भाग रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ताकि हम एक्यूज जो भी पर्सन अरेस्टेड है उसको हम केस से रिलेट कर सकें और उसकी पहचान हो सके। भाई पहचान हो तब तो केस आगे बढ़े, जब तक वो अननोन पर्सन के खिलाफ 50 सस्पेक्ट होंगे, माँ बाप भाई बहन भी सस्पेक्ट हो जाते हैं, राइट। सारे दोस्त, दुकानदार, कॉलेज में किसी से झगड़ा हुआ था स्विमिंग पूल को लेकर, वो सब भी सस्पेक्ट है। तो नैरो डाउन करने के लिए आइडेंटिफिकेशन तो जरूरी। तो कुछ लोग शक के आधार पे पकड़े गए, अब शक के आधार पे पकड़े गए तो अब आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी ना कि एग्जैक्टली कौन। समवेयर द एक्यूजेशन हैज टू बी पिन डाउन, पिन डाउन किस पे करें। तो उस पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए यहां पर ये जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है इसका कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं। ये लोग जब बयान कोर्ट में देंगे तब वो डिपोजिशन इज एन एविडेंस, अभी नहीं। दिस डजंट हैव एनी एविडेंशियल वैल्यू। दूसरी बात, एविडेंशियल वैल्यू होता अगर ये मैजिस्ट्रेट के सामने होता, जिसको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं, एविडेंस एक्ट में हम पढ़ेंगे भी, ये मैजिस्ट्रेट के सामने होता तो फिर इसका एविडेंशियल वैल्यू होता, लेकिन अभी शायद वो पर्पस ही नहीं, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑर्डर कहां से आएगा? कोर्ट से ही आएगा। तो सेक्शन 54A मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, इसका ब्रेकअप की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन दिल करे तो आप खुद कर लें। फिल इन द ब्लैंक्स अपने नोट्स में आप भी तो कर सकते हैं। मैंने पहले भी 2-3 सेक्शंस ऐसे आपको कराए हैं जो मैंने खुद ब्रेक डाउन करके आपको दिखा दिया है। अब आपका काम था कि आप अपने रजिस्टर पे ठीक वही चीज लिख लें। नहीं लिखे हैं तो फिर आपका बेयर एक्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा, राइट। पांचवी चीज जो करनी है अरेस्ट के बाद जो पांचवी चीज होती है कि रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट टू बी सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इसको आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो भी अरेस्टेड पर्संस है ना, उनका लिस्ट प्रतिदिन डीएम को भेज दिया जाता है। ये काम है पुलिस वालों का, करना पड़ेगा। सो रिपोर्ट्स ऑफ अरेस्ट टू बी सेंट टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सेक्शन 58 में है। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन बॉन्ड और बेल। एक बार किसी केस में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है
तो अब उसे छोड़ा जा सकता है या तो बॉन्ड पे या बेल पे, राइट, अगर तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ है। लेकिन अगर मान लो कि पुलिस को लगता है कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, गलती से पकड़ा गया है, तब तो ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पर्सन हैज बीन फाउंड टू बी रिलेटेड। बट अब रिलीज अगर छूटेगा तो या तो बेल ले कोर्ट से, बेलेबल ऑफेंस है तो स्टेशन बेल, नॉन बेलेबल है तो कोर्ट से ले, राइट। और अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बॉन्ड साइन करेगा। ये नहीं कि बिना बॉन्ड के ही उसे छोड़ दे, बॉन्ड के बिना तो छोड़ ही नहीं सकते, राइट। तो ही विल बी डिस्चार्ज आइदर ऑन बॉन्ड और बेल, सो दैट he comes back to the court, right, for trial, and he keeps cooperating with the police officials during investigation. सातवीं चीज जो अरेस्ट के बाद होती है वो है the magistrate may direct any person including an accused to give specimen signature. इस पर लंबी बहस हम पहले ही कर चुके हैं, एचएम प्रकाश केस आपको याद होगा। स्पेसिमेन सिग्नेचर देना, हैंडराइटिंग के पर्पस से, कंपैरिजन के पर्पस से थंब इंप्रेशन देना, राइट, कोई वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं है। इट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इट इज प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, राइट। तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड इज कनेक्टेड विद द इन्वेस्टिगेशन, राइट। इफ द पर्सन अरेस्टेड इज कनेक्टेड विद द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के क्रम में उसे अरेस्ट किया गया, तो फिर उसका हैंडराइटिंग कंपेयर करने के लिए स्पेसिमेन सिग्नेचर या स्पेसिमेन राइटिंग कुछ, उसका ऑर्डर मैजिस्ट्रेट दे सकता है। द मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट दैट पर्सन टू गिव सो। दिस इज गिवन इन सेक्शन 311A, राइट। अब तो ये सीआरपीसी में ही है, तो अब तो फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन लगाना ही बेकार है, क्योंकि दिस वाज एडेड टू द सीआरपीसी बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट करके डाला गया था। जबकि इसके पहले से ही हमारे पास जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में बड़े सारे केसेस हैं जिनमें कि सिरे से नकार दिया था कोर्ट्स ने इसे वायलेशन मानने से। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, पर्सनल टेस्टिमनी ही बार्ड है बस। याद है डिस्कशन? We have done a great deal of discussion on this topic while doing H.M. Prakash's case. Right? I hope this is clear. Our next topic is what are the rights of an arrested person? But then, what has happened? रुक भी गया ये, ठीक भी है. Right. So now the calls are coming. I told you that I have a meeting scheduled, so I'll leave. It's 7:19. तो कल resume करते हैं, right? Rights of arrested person, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन। पूरा इन्वेस्टिगेशन हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए फिर, have a good day. Okay, thank you, sir.